पे हर वीडियो में आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडर माइकल के तर्जमे होंगे और ये कॉन्सेप्ट्स हर मार्केट पर काम करते हैं। आप शरी ट्रेडिंग करें या गैर शरी, ये आपकी चॉइस है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सेशन खास तौर पर वीकली बायर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एक्सेलेंट प्रोफाइल्स इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि बुलिश वीकली प्रोफाइल्स कब बनती हैं ताकि वीकली लोज की एंटिसिपेशन कर सके, और बेरिश वीकली प्रोफाइल्स कब बनती हैं ताकि वीकली हाईज की एंटिसिपेशन कर सके। तो वीकली स्मार्ट मनी व्यू जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ये एक चार्ट है जो एक हफ्ते के ट्रेडिंग को दिखा रहा है। And I want you to take a look at how the market gyrates from day to day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. This would be in a bullish scenario. Bullish conditions. कोशिश करेंगे कि वीकली लो संडे की ओपनिंग What we're looking for is the weekly low to form between Sunday's opening and Wednesday. 7 बजे सुबह न्यूयॉर्क नाइम खुदा There are high odds इम्कान मजीद बढ़ for जाते हैं the weekly low to form before Wednesday's New York Open, or would be otherwise 7 a.m. New York time. न्यूयॉर्क ओपन तक। अब हम The odds further increase वाज़ेह करते हैं between Tuesday and Wednesday, focusing on Tuesday's London to Wednesday's New York Open. अगर आप चाहें तो हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स जैसे मंथली और वीकली चार्ट्स Let's flesh out some more ideas about this. लेकिन यहाँ हम आवरली और What you're really looking for is a higher time frame directional bias. perspective देख रहे हैं ताकि आप There's पूरे a रोजाना couple different ways you can do that, and I teach those in mentorship. But if you'd like looking at higher, हमारा फोकस what we want to be focusing on is the opening price on Sunday. Now, some of you may not have a Sunday candle in your platform, and that's fine. It's still beneficial for you to seek out whatever the Sunday opening price is. So you can use things like websites that follow the foreign exchange markets. You get opening prices. Sometimes the opening prices will create gaps on price close. ये गैप्स मार्केट Those gaps are very indicative of sentiment, and sometimes they could be exhaustive, or they could be insightful in the form that it's showing underlying strength. If the gap's up, it may not fill. It may not trade back down and fill that gap and trade higher. It may just straight trade away, go north higher and then higher opening on Sunday's open. Is on Sunday's opening, we want to see that opening price and extend it all the way to Friday, keeping that in mind. And I'll explain why that's important in a couple minutes. What we're primarily looking for is a power of 3 formation on the weekly range. But from a 30-minute chart, which we're showing here, this is going to give us the intraday reference points, and it'll show you how the market moves and gyrates with this insight. याद रखें कि ट्रेडिंग के लिए not to use होता है, चाहे आपके प्लेटफॉर्म में Sunday's संडे data, कैंडल ना which भी हो। अक्सर I मार्केट think is डेटा a मंडे के little myopic when we're at least talking about पहले the relationships of लिहाजा the opening price ये or the फायदेमंद है weekly कि आप range, रिसर्च करें because और अपने they have to इस्तेमाल होने understand वाले that फोरेक्स पेयर के प्राइस still is there in terms. आप मंडे के ओपनिंग प्राइस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे डेटा थोड़ा स्क्यू हो जाए। मंडे का जो पहला ओपनिंग प्राइस होगा उसे आप ड्रॉ करके फ्राइडे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट संडे को लोअर प्राइस लेवल से स्टार्ट करे तो मंडे के ओपनिंग पर प्राइस शायद नीचे न जाए, जो कि बुलिश सिनेरियो में एक अहम बात है। या आप चाहते हैं कि ओपनिंग प्राइस पर या उससे नीचे बाय करें। मैं नए ट्रेडर्स को संडे का ओपनिंग प्राइस किसके यूज करके सिखाता हूं, क्योंकि ये उन्हें कई चीजें सिखाता है। सबसे पहले ये सेंटिमेंट को समझाता है और बगैर किसी इंडिकेटर्स के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचानना सिखाता है। उसके अलावा ये हार्ड टाइम फ्रेम प्रेमिस पर ट्रस्ट करना भी सिखाता है। मंथली और वीकली चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? क्या वो इंप्लाई कर रहे हैं कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे? यहाँ जो एग्जाम्पल है वो इस बुनियाद पर फ्रेम्ड है कि हमने एनालिसिस के जरिए ये देखा कि हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स हायर प्राइसेस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि संडे के ओपनिंग या उसके फौरन बाद प्राइस एक्सपैंड करेगा और वीक के दौरान हायर ब्लोज या हायर प्राइस लेवल बनाएगा, जहां हम होपफुली कुछ पिप्स हार्वेस्ट कर सके। पावर ऑफ 3 में हम डे बाय डे रिलेशनशिप देखते हैं और ये कि प्राइस ने ओपनिंग प्राइस के साथ क्या वीकली रेंज के लिहाज से। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो ये इनसाइट आपके लिए हेल्पफुल है और आपको डे ट्रेडिंग की फिक्र नहीं करनी पड़ती। एक बार जब आप ओपनिंग प्राइस जान ले तो आप एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे जा सकता है। अब ये कि आप किस लेवल पर बाय करना चाहते हैं उसके कई तरीके हैं और मैं उनमें से बहुत से सिखाता हूं। मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं कोई स्पेसिफिक सेटअप आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि सालों के तजर्बे से मैंने सीखा है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स हर फर्द के लिए एकसा काम नहीं करते। ये पैटर्न्स की वजह से नहीं होता, बल्कि हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर जब मार्केट नई लो बनाता है तो बाद ट्रेडर्स को ये खौफनाक लग सकता है और वो बाय नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स जो ये देखते हैं कि और जो ट्रेडर्स कहते हैं कि ये बिल्कुल मंतकी है, वो इस तरह के पैटर्न की तरफ अट्रैक्ट हुए। वो ट्रेडर्स जो ऑल लोज के नीचे बाय नहीं करना चाहते, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं जब वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बाय करें, यानी जब प्राइस पहले थोड़ा ऊपर गया हो और फिर रिट्रेस करें। उनके लिए ये ज्यादा समझदारी का काम है। उसीलिए मैं फ्री कंटेंट में इस टीचिंग स्टाइल से क्रीज कर रहा हूं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स या फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को ये इंप्रेशन दे सकता है कि मैं उन्हें किसी स्पेसिफिक मोल्ड या तरीका पर फॉलो करने के लिए फोर्स कर रहा हूं। एक टीचर और ट्रेडर की हैसियत से मैं जानता हूं कि ये हर किसी के लिए काम नहीं करता। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वर्क करे, लेकिन मैं अपनी मेंटरशिप की कामयाबी को सिर्फ चंद स्टूडेंट तक महदूद नहीं रखना चाहता। मेरा टीचिंग तरीका ऐसा है कि कंटेंट आपके लिए प्लग एंड प्ले हो, आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसे अप्लाई कर सके। मैं मेंटरशिप में उस पर बहुत काम करता हूं, लेकिन फ्री कंटेंट में ये सब कुछ आपके लिए काफी है और आपको वो तमाम सेटअप्स मिल जाएंगे जिनकी आपको तलाश है। अब हम इस प्रिंसिपल को फाइन ट्यून करके आपको स्पेसिफिक लेवल्स भी बता सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस के नीचे कहां बाय करना चाहिए, चाहे आप डे ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अगर आप शॉर्ट ट्रेंड ट्रेडर हैं और ने मेरी कंटेंट देखी तो आप उसी कॉन्सेप्ट को वीकली कैंडल के ओपनिंग प्राइस इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं। वीकली रेंज और वीकली कैंडल सिनोनिमस टर्म्स है, मैं उन्हें इंटरचेंजेबली यूज करता हूं, लेकिन यहां मैं वीकली रेंज की बात कर रहा हूं।
तो यहाँ हम जिस चीज को फॉर्म कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर वीक का मूवमेंट डेटा है, यानी इस वीक के लो से हाई तक, और ये ओपनिंग प्राइस संडे के ओपनिंग प्राइस की नुमाइंदगी करता है। हम पहले ही उस वीक के लिए पुलिश होंगे और एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस ओपन से नीचे जाएगा। हम इस वक्त किसी भी हरकत में दिलचस्पी लेंगे जो ओपन से ट्रेड अप करे, लेकिन पहले हम उसे इंटरेस्टिंग मूव नहीं सोचे। हम वेट करेंगे कि ये ड्रॉप होकर ओवरसोल्ड कंडीशन तक पहुंचे। ये ओवरसोल्ड कब होगी? क्योंकि ओपनिंग प्राइस वैल्यू है, यानी उस वक्त फेयर वैल्यू है जब नई ट्रेडिंग शुरू होती है। मुस्तकबिल में हम एंटिसिपेट करेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा। जब ये ओपनिंग प्राइस से नीचे जाएगा तो इस प्राइस को हम ओवरसोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारे प्रेमिस और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हम पहले ही मंथली और वीकली चार्ट के लिहाज से बुलिश है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीकली रेंज मजीद ऊपर जाएगी तो नए वीक में हम देखेंगे कि ओपनिंग प्राइस ड्रॉप करे, जिसे जूडस स्विंग कहते हैं। ये इंजीनियर्ड मूव होता है ताकि वो इंडिविजुअल्स जो पहले से लॉन्ग हैं बाहर निकलें, या वो ट्रेडर्स जो अभी मार्केट में नहीं है और शॉर्ट सेल करना चाहते हैं उन्हें एंटाइज किया जा सके। कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स जो ब्रेकआउट में सेल करना चाहते हैं वो इस हरकत के दौरान फिल हो जाएंगे। तो आप बतौर शॉर्ट टर्म ट्रेडर इलेक्ट कर सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस के नीचे किसी लेवल पर बाय करें। ये वही लेवल्स हैं जो मेरे ट्यूटोरियल्स में सिखाए जाते हैं, लेकिन मेंटरशिप में हम उस पर ज्यादा तफसील से जाते हैं ताकि आप मुख्तलिफ एंट्री टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स फ्रेम कर सकें जो ओपनिंग प्राइस के नीचे रहते हैं। फ्री ट्यूटोरियल के स्टार्ट पॉइंट से अगर हम जान लें कि वीकली लो संडे के ओपनिंग प्राइस से शुरू होकर उस वीक के लो पर बनेगा, तो ये लो संडे के ओपनिंग और वेंसडे के न्यूयॉर्क ओपन के दरमियान फॉर्म हो। बुलिश होने की सूरत में लंदन सेटअप से ट्यूसडे और वेंसडे के न्यूयॉर्क सेटअप के दरमियान लो के बनने के इम्कानात ज्यादा फेवर करते हैं। इन दो टाइम पीरियड्स के दरमियान मैं चाहूंगा कि आप अपने चार्ट्स पर जाएं और देखें। हाइंडसाइट डेटा के साथ ये देखना वाकई बहुत आसान है, और आप देखेंगे कि जो मैंने अभी बताया वो बिल्कुल एलिफेंट इन द रूम है। रिटेल ट्रेडर्स उससे पहले नहीं जाते थे, जब तक मैंने ये पब्लिकली अपनी यूट्यूब चैनल और ट्यूटोरियल्स में नहीं बताया। कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जो लोग कहते थे कि वो उसके बारे में अवेयर है, उनके ट्रेड्स में एग्जांपल्स देखे तो कभी ये वहां नहीं है। वो बिल्कुल अपोजिट चीजें कर रहे थे जो ये टीचिंग सिखाती है। मैं ये काम 2 दहाइयों से कर रहा हूं और दुनिया में सिर्फ चंद इंडिविजुअल्स को ही ये सीखने का मौका मिला। तकरीबन 18 साल पहले ये बहुत छोटा सा सर्कल था और मैं और वो फ्यू इंडिविजुअल्स ही बाकी इस फिनोमेनन से वाकिफ थे। अब जब मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए तो एजुकेटर्स और दूसरे लोग मेरे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने लगे, कभी रीनेम करके, कभी ट्विस्ट देकर, जैसे वीकली स्ट्रेटजी या कुछ और। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं तो ये वही है जो मैंने यहाँ और अपने प्रीवियस टीचिंग्स में सिखाया है, खास तौर पर एक्सप्लोसिव प्राइस मूव्स को कैच करने के बारे में। मेरी ट्यूटोरियल में प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई थी, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखें तो इब्तदाई चंद मिनट में वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। जब ये वीडियो बेबी पिप्स पर शेयर हुआ तो लोगों ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन मसला ये है कि अक्सर ट्रेडर्स नहीं जानते कि ओपनिंग प्राइस के नीचे क्या करना है। एक और बुलिश सिनारियो में इस इंस्टेंस में आप किस लेवल पर बाय करें, मैं क्लासिक मार्केट स्ट्रक्चर कॉल यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री सिखाऊंगा। आप एंटिसिपेट करेंगे कि ट्यूसडे से वेडनेसडे के दरमियान लो फॉर्म होगा। अब कभी कभी ये मंडे को भी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी ट्यूसडे या वेडनेसडे को कंटिन्यूएशन मूव हासिल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं चाहता हूं कि आप ट्यूसडे से वेडनेसडे के टाइम पीरियड के बारे में सोचें, क्योंकि यही वो वक्त है जब वीकली लो बनने का इम्कान ज्यादा होता है। अक्सर ये ट्यूसडे के लंदन ओपन पर बनता है। अगर ये आपको समझ ना आए तो रुक जाएं और सोचें जो मैंने अभी बताया। वीकली लो सबसे ज्यादा इम्कान के साथ ट्यूसडे के ओपन पर बनता है, खास तौर पर अगर हम बुलिश हो। अगर ये ट्यूसडे को ना बने और हम वेडनेसडे को नीचे जाएं तो मुमकिन है कि वेडनेसडे ही वीक का लो। अगर हम वेडनेसडे के न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे जाएं तो आपको ट्रेड छोड़कर साइड लाइंस पर आ जाना चाहिए, खास तौर पर अगर आपने ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपॉर्चुनिटी ली थी और वो लूजिंग ट्रेड। आपको बस ये कबूल करना होगा कि आप गलत थे, चाहे थर्सडे या फ्राइडे प्राइस ऊपर जाए और आपने वो मिस कर दिया। ये बहुत हार्ड लेसन है, क्योंकि आप वीक के लिए बुलिश थे लेकिन स्टॉप आउट हुए और फिर भी प्राइस अपनी तरफ गया। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, और ये सेटअप की इफेक्टिवनेस या वैलिडिटी को कम नहीं करता। आपकी ट्रेडिंग में इंपरफेक्शन आएगी और आपको उसे कबूल करना होगा। तो अगर हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को लो देखने के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं तो हम बस वीकली में नया लो देख रहे हैं, प्रेफरेबली ट्यूसडे के ओपन पर या वेडनेसडे के न्यूयॉर्क ओपन पर। इन दो रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान जब वीकली में लोअर लो बन जाए तो हम शॉर्ट टर्म हाई तलाश करते हैं जो उस नए लो से पहले आया हो। इस केस में ये है। जब ये वाकई हो जाए तो यही हमारा ट्रिगर पॉइंट है। जो लोग रिट्रेसमेंट्स पर बाय करना चाहते हैं वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के लिए यही पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वेट करेंगे कि प्राइस उस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक करे जो कि यहाँ होता है। तो इस नुक्ते से आप लो तलाश करेंगे जो इस रनअप से पहले आया हो। क्लासिक फिबोनाची के लोग इस लो से हाई तक जाते हैं, कभी ये काम करता है कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस लो से सबसे डायनामिक का इस मूवमेंट देखें। आप अपना बाय स्विंग लो के लोवेस्ट क्लोज या ओपन पर एंकर करें और उसे इस बॉडी तक ट्रैक करें। मैं यहाँ ये नहीं दिखा रहा ताकि प्रेजेंटेशन क्लीन है, क्योंकि मेरे चार्ट पर वाटर मार्क और रेफरेंसेस है। मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने डेटा पर ये देखें। नवंबर 21वें और 22वें 2017 का 30 मिनट चार्ट इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि बाय लो से हाई तक जाने पर आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल जाएगी, ब्यूटीफुली लाइंड अप, और ये आपकी कंटिन्यूएशन बाय होगी। और अहम बात यह है कि आप वीकली ओपन के नीचे बाय कर रहे हैं, संडे के वीकली ओपन के नीचे, ताकि पावर ऑफ 3 के लिए एक वीक की हरकत से फायदा उठाया जा सके। ये हमें बेस्ट एडवांटेज देता है क्योंकि हम एक्सपेंशन से पहले एंटर कर रहे हैं। वीकली रेंज में हम इवैल्यूएशन के नीचे बाय कर रहे हैं, जिसे फेयर समझा जाता है, और ये ड्रॉप करके ओवरसोल्ड कंडीशन में आता है। जब सब लोग इन मूवमेंट्स को डाउनसाइड मोमेंटम समझकर देखें, हमारा पर्सपेक्टिव स्मार्ट मनी की तरह है। हम उसे देखते हैं कि ये रियली चीप प्राइस के एरिया में जा रहा है। अगर आपको खौफ लगे कि नए लो के नीचे एंटर करें तो ये समझ में आता है, लेकिन वक्त के साथ आपको उसका सामना करना पड़ेगा और उसे ओवरकम करना होगा, या आप सिर्फ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के साथ चलें, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाय ऊपर करें
और आप हमेशा इस ख्याल से रेसल करेंगे कि काश मैं वहां नीचे बाय कर लेता। ये सिर्फ इस वक्त होगा जब आप नए लोज पर बाय करें, इस वक्त जब लो ऑफ द वीक बनने वाला। जैसा कि मैंने कहा, यह करना आसान नहीं जब तक कि आप परसेंटर ना हो और खुद को डिसेंसिटाइज ना करें। उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, डेमो अकाउंट में बार बार करना और लाइव डेमो में भी रिपीटेडली करना, यहां तक कि आपको इस बात की परवाह ना हो कि आउटकम क्या होने वाला है। मुनाफा बख्श हो या ना हो, यही कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है। आप आउटकम की फिक्र नहीं करते, बस प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं। वक्त के साथ सैंपल साइजेस ज्यादातर पॉजिटिव जानब वे होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बनिस्बतन टेम्पररी और कभी कभी अनवांटेड नेगेटिव रिजल्ट्स के, जैसे कि ट्रेड मिस करना या स्टॉप आउट। यही ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है और ये इस दिन होता है जब हम एंटिसिपेट करें कि वेडनेसडे को वीकली लो बने और प्राइस एक्सपैंड करे। हम चाहते हैं कि प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाए और उससे दूर एक्सपैंड करने की विलिंगनेस दिखाए, ना कि वापस आकर उसे टच करे। यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर वीक का लो मंडे को बन जाए तो हम कैसे जाने कि ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर वापस जाएगा। मंडे को अगर एक्सपैंड करे और थोड़ा ऊपर जाए तो मैं उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि मंडे है और मैं मंडे की पूरी रेंज देखना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि अगर वीक का लो मंडे को बन जाए तो मैं वो मिस कर देता हूँ, क्योंकि मैं साइड लाइंस पर बैठना चूज करता हूँ ताकि मंडे की रेंज से इनसाइट्स ले सकूं। ट्यूसडे को अगर हम बुलिश है तो मैं होपफुली लोअर लो देखना चाहूंगा और फिर उसी पैटर्न या की लेवल के मुताबिक बाय करूंगा जो मैं सिखाता हूं और उस राइड आउट करूंगा ताकि प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर वापस जाए। अगर ट्यूसडे को ट्रेड ओपनिंग प्राइस के ऊपर हो जाए तो मैं वेडनेसडे को अलाउ करूंगा कि वो रिट्रेसमेंट दिखाए, दोबारा ओपनिंग प्राइस तक आए और फिर वापस रैली करे। अगर हम वेडनेसडे को ओपनिंग प्राइस के ऊपर ब्रेक करें, ये प्राइस दोबारा ओपनिंग प्राइस पर नहीं आना चाहिए और नहीं आना चाहिए। आसान अल्फाज में वेडनेसडे खत है, यानी द लाइन इन द सैंड। अगर ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करे एक और बुलिश सिनेरियो तो हम उसे वापस ओपनिंग प्राइस पर आने की इजाजत नहीं देते। अगर हम ट्यूसडे को नए लो पर ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएं तो फिर भी मुमकिन है कि ये वेडनेसडे को वापस आए और ओपनिंग प्राइस को रीटेस्ट करे, लेकिन एल्गोरिथम उसके बाद ओपनिंग प्राइस से तो एक्सपैंड करना चाहेगा, क्योंकि अब सिर्फ नए ओपन्स और फ्राइडे के क्लोज का टाइम पीरियड बचा। यही वजह है कि आप देखते हैं वीकली रेंज में हरकत की एक्सेलरेशन तकरीबन वेडनेसडे के बाद शुरू होती है जब ओपनिंग प्राइस ब्रेक हो जाए। आप इसे देखेंगे और शायद कुछ लोग क्रिटिसाइज करें जो मेरी टीचिंग को पसंद नहीं करते क्योंकि वो इंडिकेटर्स पर रिलाई करते हैं या वो फैक्ट पसंद नहीं करते कि मैं सही हूं। वो कहेंगे कि ये हाइंडसाइट में चेरी पिक्ड है। हाँ, मैंने ये हाइंडसाइट में दिखाया था कि आप समझ सके, क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। वही भी जो आपको सिखा रहा है वो किसी ना किसी हद तक हाइंडसाइट इस्तेमाल कर रहा है। मैं कहता हूं कि आप अपने चार्ट्स देखेंगे तो आप खुद भी उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और आप जल्दी समझ जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो असल है। तो जब हम वेडनेसडे या ट्यूसडे या मंडे को ओपनिंग प्राइस क्रॉस कर जाएं तो मंडे पर लो पर्सनली मैं कभी नहीं लेता। साफ लो मंडे को नहीं मिलती। आप थ्योरी टेस्ट करके मंडे को बाय कर सकते हैं और कुछ हासिल भी हो सकता है, लेकिन अगर ये ओपनिंग प्राइस पर वापस आए तो मेरी राय में थोड़ा प्रॉफिट लेने और स्टॉप लगाएं ताकि ओपन प्रॉफिट्स महफूज है। मैंने तमाम पॉसिबल सिनारियोज और वीकली क्रोनो बॉल्स का स्टैटिस्टिकल मुताला किया है और मैंने चूज किया कि बस ट्यूसडे तक वेट कर। ये मेरा तरीका है। मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, लेकिन मैं ये करता हूं। मैं ये आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी अप्रोच में ओपन रहूं। ट्यूसडे को मैं बाकी एक्टिवली लंदन ओपन देख रहा हूं, यही मेरी मेन फोकस है। ट्यूसडे के लंदन ओपन और कुछ ओपनिंग के दरमियान मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस रिलैक्स कर रहा हूं और फैमिली टाइम गुजार रहा हूं। मैं चार्ट्स पर एक नजर डालता हूं, लेकिन 1 बजे के करीब ट्यूसडे के ओपन तक एक्टिवली कुछ परस्यू नहीं करना। अगर आप फ्रंट करेंसी पेयर्स के वीकली रेंजेस देखें तो अक्सर बुलिश या बेयरिश टर्निंग पॉइंट्स ट्यूसडे के ओपन पर बनते हैं। इस एग्जांपल में हम बुलिश हैं और संडे के ओपनिंग प्राइस को देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये ड्रॉप करे और जब ये एक लेवल तक जाए हम वेट करते हैं कि ये स्विंग हाई को ब्रेक करे। ये मंडे को भी हो सकता था और रिट्रेसमेंट ट्यूसडे को हो रही थी, जैसा कि यहाँ वेडनेसडे को हो रही। ट्यूसडे को भी ये ट्रेडिंग कर सकती थी और हम उसे वीकली ओपन के रीटेस्ट के बाद वापस आने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये दोबारा अलाउड नहीं है। अगर ये वेडनेसडे के बाद ओपनिंग प्राइस की तरफ दोबारा आना शुरू करे तो शायद ये रिवर्सल कर रहा है या बाकी वीक के लिए कंसोलिडेट करेगा और दोनों वीकली एक्सपेंशन के लिए अच्छे नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वीकली रेंज में ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड होता है लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ता और ग्रेविटी के तौर पर वापस ओपनिंग प्राइस पर आ जाता है, तो अगला वीक वाइट होगा। अगर फिर भी बुलिश है तो अगले वीक में वही क्राइटेरिया यूज करेंगे। अब अगला स्टेज ये होगा कि हम वाकई इस एक्सपेंशन की तवक्को करें। वीकली रेंज का ये हिस्सा वो होगा जिसे आप होल्ड करेंगे, जैसे कि फ्राइडे के क्लोज तक। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप कोशिश ना करें। मैं अपनी वीक का आगाज ऐसे सिनारियोज देखकर करता हूं जो मुझे ओपनिंग प्राइस के नीचे ले रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ओपनिंग प्राइस के नीचे एंट्री सबसे आइडियल है मेरे तमाम डे ट्रेड्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। शॉर्ट टर्म से स्विंग ट्रेडर के तौर पर आप ये इनसाइट वीकली रेंजेस इस्तेमाल करके ले सकते हैं और आवरली या 4 आवर चार्ट की जरूरत नहीं। इसलिए जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और कहते हैं मैं डे ट्रेडर नहीं हूं, यह इंफॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है, उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। या तो शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड करने की एबिलिटी देता है, संडे के ओपनिंग प्राइस पर वेट करें, ये ड्रॉप करें और फिर सिंपली एंटर करके हैंडल करें। आप खुद भी इस थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप वीकली रेंज में बुलिश हैं और ओपनिंग प्राइस से 10 पिप्स ड्रॉप हो तो इस थ्योरी को टेस्ट करें। अगर बुलिश है, संडे की ओपनिंग प्राइस के 30 पिप्स नीचे बाय करें और 150 पिप्स टारगेट रखें। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं। उसको लेट गो करें और देखें कि आपको 150 से 300 पिप्स मिलते हैं या नहीं। इस थ्योरी को टेस्ट करें और फीडबैक मुझे ट्विटर पर दें। किसी भी पैर पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉरेक्स के लिए यही सजेशन दूंगा। ये नहीं मतलब कि कभी कभी ये 50 से 55 पॉप्स नीचे भी जाएगा, लेकिन आमतौर पर ओपनिंग प्राइस के नीचे बाय करने के बाद 150 पॉप्स स्टॉप लॉस रखने का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता कि ये ओपनिंग प्राइस से 180 पिप्स नीचे जाएगा।
अगर वाकई बुलिश है तो ये ज्यादा वक्त ओपनिंग प्राइस के नीचे नहीं रहेगा। ये इतना नीचे नहीं जाएगा जब तक कि हम लॉन्ग टर्म रिवर्सल ना देख रहे हो, यानी बेरिश मार्केट से बुलिश मार्केट में बदल रहे हैं। तब हम कभी कभार ओपनिंग प्राइस से के नीचे वाकई वाइल्ड मूवमेंट्स देख सकते हैं, लेकिन मैं आम तौर पर उनकी तलाश नहीं करता। मैं ऐसे मार्केट प्लेस को देखता हूं जो पहले ही हरकत में है और मैं सिर्फ लॉजिकल एरिया में पोजीशन ले रहा हूं जहां अगला अपसाइड वाज एक्सपेंशन या बुलिश क्लोज हो फ्राइडे के लिए। अब वीकली स्मार्ट मनी व्यू या बेरिश कंडीशंस में हम उसी चीज को रिवर्स करते हैं। हम चाहते हैं कि वीकली हाई बने संडे से वेंसडे के दरमियान और हाई ऑड्स हैं वेंसडे के न्यूयॉर्क ओपन 700 में से संडे के ओपनिंग के बाद। ऑड्स वजी पड़ जाते हैं ट्यूसडे और वेंसडे के ट्रेडिंग में, खास तौर पर ट्यूसडे के लंदन ओपन से वेंसडे के न्यूयॉर्क ओपन तक। अब हम इस पर्टिकुलर करेंसी के वीकली रेंज को देख रहे हैं जो ये डॉलर CAD है। आप देख सकते हैं कि मंडे को प्राइस ने ऊपर हरकत थी, फिर ट्यूसडे को दोबारा ऊपर गया जिससे वीक का हाई बना लंदन सेशन में जो हम चाहते थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल बेरिश वीक होगा। जब संडे का ओपनिंग प्राइस मिल जाए तो हम उसे पूरे वीक में एक्सटेंड करते हैं फ्राइडे के क्लोज तक। ओपनिंग प्राइस के ऊपर मूवमेंट्स को हम एंटिसिपेट करते हैं और चाहते हैं कि प्राइस ऐसे लेवल तक जाए जो उसे टेक्निकली ओवरबॉट कंडीशन में ले जाए। मेरे चार्ट में कोई ओवरबॉट इंडिकेटर नहीं है, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ रहा हूं। ये कि हम ओपनिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एक मार्केट एनवायरनमेंट में जो लॉन्ग टर्म बेरिश है, यही फ्रेम फ्राहम करता है। मेरा ख्याल यह है कि ट्यूसडे और वेंसडे को अगर वीक फॉर्म्स हो और तकरीबन कोई मूवमेंट ना हो तब भी प्राइस की ओपनिंग प्राइस के ऊपर वापस जाने पर एक छोटी सी फ्लिप नजर आती है और फिर वो जल्दी रिजेक्ट हो जाता है। नोट करें कि वेंसडे को जब ये ओपनिंग प्राइस छोड़ता है तो वापस जाने की कोशिश नहीं करता। हाँ, ये थोड़ा रिट्रेस करता है लेकिन करीब नहीं आता। अगर ये वापस आ जाए तो वीक मिक्स होगा और हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। आखिर में प्राइस नीचे आता है, लो बनाता है और अगर रिवर्सल आए तो वो हमारी फोकस या स्कोप के बाहर होगा। पॉइंट ये है कि जब हम बेरिश है तो हम शॉर्ट सेल चाहते हैं, प्रेफरेबली वीकली हाई के करीब और उसे राइड करते हुए वीकली ओपनिंग प्राइस के नीचे एक्सपेंशन देखना चाहते हैं। वीकली रेंज या वीकली कैंडल के लिहाज से हम ओपनिंग प्राइस देख रहे हैं, फिर जूडस स्विंग आता है। ये वो पोर्शन है जिसे हम एंटिसिपेट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास वो लेवल पहले से हो जहां हम शॉर्ट सेल करने वाले हैं, यहां तक कि ट्रेड अप शुरू ही ना हुआ हो। इस एग्जांपल में एक अच्छा मिसाल ये है कि मंडे का हाई देखें जो तकरीबन बराबर है और उससे ऊपर प्राइस स्नैप्स हुए हैं। आप यहां सेलर हो सकते हैं और मैंने बाकी ये ट्रेड किया था और ट्विटर पर शेयर भी किया। आप मेरी ट्विटर फीड देख सकते हैं तारीख नवंबर 21 से 22 के करीब जहां एंट्री पॉइंट्स और सब कुछ मौजूद है। शॉर्ट सेल करें, एक्सपेक्ट करें कि डॉलर CAD की प्राइस सेल ऑफ करे, ओपनिंग प्राइस के नीचे जाए। याद रखें जब तक ये वेंसडे के न्यूयॉर्क ओपन से पहले है ये परमिसिबल है। देखिए प्राइस ट्रेड बैक कर सकता है ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्योंकि वेंसडे को ये गेट छोड़ना चाहिए जब ये शुरू होता है। जब ये ओपनिंग प्राइस छोड़ता है तो ये एक्सपैंड करेगा ताकि प्राइस एक्शन बन सके जब ओपनिंग प्राइस के नीचे हरकत बेहतर करे। वीकली रेंज के एक्सपेंशन पोर्शन के लिए आप होल्ड कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप इस वक्त पोजीशन में हो जब प्राइस ऊपर जा रहा हो, जब लॉन्ग टर्म बेरिश हो तो ये स्केरी लगता है, ऑड लगता है और आउट ऑफ प्लेस महसूस होता है क्योंकि आप प्राइस को ऊपर जाते देख रहे हैं। हर रिटेल माइंडेड ट्रेडर और ट्विटर या फेसबुक पर हर शख्स ये देखकर कहेगा ये तो चांद पर जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये साउथ बाउंड ट्रेड है। जब ये स्टेशन छोड़ता है यानी वेंसडे के न्यूयॉर्क ओपन पर ओपनिंग प्राइस, तो अपनी चार्ट पर इस लाइन को ड्रॉ करें। जब ये होता है तो ये हमेशा ओपनिंग प्राइस से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। आपके पास प्री डिटरमाइंड लेवल होना चाहिए जहां आप इस एक्सपेंशन के दौरान एग्जिट करेंगे। इस केस में हमारे पास रिलेटिवली इक्वल लोज हैं, एक लो यहां और एक लो यहां। अगर हम उससे 10 से 20 कट्स नीचे जाएं तो हमें तकरीबन 26.95 मिलेगा जो यहां मार्क है। प्राइस थोड़ा और नीचे जा सकता है लेकिन फिर स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के साथ वापस आता है और वीक के एंड पर क्लोज होता है, गिविंग अस वीकली कैंडल या रेंज प्रोफाइल। फिर सिनेरियो यह है कि आप ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल दिखे। डे ट्रेडर के तौर पर आप उस पर फोकस कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडर के तौर पर आप वीकली कैंडल या वीकली रेंज इस्तेमाल करके मुकम्मल ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे या डेली चार्ट देखें बगैर। आप इसी सिनेरियो के लिए वेट करें कि ये ओपनिंग प्राइस से तकरीबन 30 पिप्स ऊपर ट्रेड करें। इस केस में हम तकरीबन यहां ओपन हुए तो 10-20-30 पिप्स ऊपर जा सकते हैं और आप यहां 20.5 के करीब सेलर बन सकते हैं। एक लॉस लगाएं तकरीबन 150 पॉइंट्स या पिप्स पर, कोशिश करें कि 150 से 300 पिप्स का प्रॉफिट हासिल करें, जैसे कि 122.8 के करीब सेल करके। प्राइस नीचे जा सकता है तकरीबन 26.75 तक। मैंने ये एग्जांपल दिया ताकि आप देख सकें कि 150 से 300 पिप्स के ऑब्जेक्टिव के बावजूद आपका एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा इतना नहीं होता। उसी लिए मैं पार्शियल प्रॉफिट्स लेने की तालीम देता हूं। फर्ज करें हमने 122.8 के करीब सेल किया यानी ओपनिंग प्राइस से तकरीबन 10 पिप्स ऊपर। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 पिप्स कैप्चर करें, जैसे ही आपने 100 पिप्स हासिल किए तो क्यों ना कुछ पोर्शन बैंक कर लें। इस मूव में हम शायद सिर्फ तकरीबन 110 पिप्स की हासिल करेंगे। जब भी आपके मूव्स 100 पिप इंटरवल्स में ट्रेड हों, कुछ पोर्शन निकालना सीखें। अगर आप ये नहीं करते तो बाद में आपको अफसोस होगा कि क्यों नहीं लिया। डे ट्रेडर के तौर पर अगर मूव 100 पिप्स थे तो तकरीबन उसी फीसद पोजीशन बैंक करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के तौर पर कम बस कम निस्फ पोजीशन निकालें क्योंकि वीकली मिड वीक में गियर्स बदल सकता है, मतलब ये लो पर जा सकता है और ट्यूसडे हाई पर ट्रेड हो सकता है। लिहाजा अगर आपने 100 पिप्स हासिल किए तो कुछ पार्टीशन निकालें, चाहे वो सिर्फ एक दहाई ही क्यों ना हो। ये आपको अच्छा फील कराएगा, आपके वक्त और रसद का रिवार्ड देगा और ओवर टाइम प्रैक्टिस की कदर सीखें। जो लोग कहते हैं कि पार्टल प्रैक्टिस लेना बेवकूफी है क्योंकि शुरू में रसद वाज़ेह था, वो समझ नहीं पाते कि इनिशियल रसद हमेशा फल प्रॉफिट गारंटी नहीं करता। कितनी बार आपके ट्रेड्स फुल प्रॉफिट तक गए हैं, कितनी बार आपने कुछ पोर्शन निकालना छोड़ दिया
यही वजह है कि पार्शियल प्रॉफिट्स लेना जरूरी है। ये आपके खिलाफ पलट गया, यही मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने इतना कुछ देखा है कि पार्शियल प्रॉफिट्स लेना लाजमी है। मार्केट खुद आपके लिए कुछ नहीं निकालेगा, आपको खुद ही पार्शियल निकालनी होगी। अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडर हैं तो वीकली रेंज इस्तेमाल करें। फर्ज करें 100 पिप्स एक्सपैंड करता है तो हफ्ते के लिए 150 से 300 पिप्स का टारगेट रखें। हमेशा 300 पिप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम बेरिश हैं तो आइडियली बड़ी वीकली रेंज देखना चाहते हैं। छोटी रेंज हो या बड़ी रेंज, अगर हम देखें कि स्मॉल वीकली रेंजेस आ रही हैं और हम बेरिश हैं तो ये सिनारियो बहुत फायदेमंद हो सकता है। कुछ वीक्स में 300 या हद्दी की 500 पिप रेंजेस भी बच सकती है, खास तौर पर जब इकोनॉमिक न्यूज ज्यादा हो और मार्केट वॉलेटाइल हो। मॉडल ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं और इंट्राडे में नहीं रह सकते तो आप मूविंग गाइस के ऊपर तकरीबन 30 पिप्स के करीब सेल शॉर्ट कर सकते हैं। आप फैंसी भी कर सकते हैं, जैसे 40 पिप्स ऊपर सेल करें, या अगर ट्रेड 50 पिप्स ऊपर गया तो वहां सेल करें। टारगेट 150 से 300 पिप्स रखें। याद रखें कि हमेशा 300 पॉप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप बस पार्शियल 100 पिप्स पर ले लें और स्टॉक को ब्रेक इवन पर रखें, आप एक खूबसूरत पोजीशन में हैं। फिर देखें कि बाकी हफ्ते में मजीद हरकत मिलती है या नहीं। जब आप एग्जांपल्स बाय इनसाइड डेटा से देखेंगे तो ये सब वाज़ेह हो जाएगा। जो आप देखेंगे उसे देखकर आप फौरन समझ जाएंगे कि ये आपके लिए है या नहीं। मेरा मकसद ये नहीं कि आप पर जोर डालो, बस ये उन लोगों के लिए है जो हर रोज इंट्राडे प्राइस एक्शन नहीं देख सकते और उन्हें हायर टाइम फ्रेम पर ये मालूमात इस्तेमाल करने का तरीका चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। अगर आप मार्केट ट्यूसडे या वेंसडे को देख सकते हैं और सिर्फ उन दिनों के मखसूस वक्त, यानी ट्यूसडे के लंदन ओपन और वेंसडे के लंदन ओपन पर देखना है, तो आप स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स देख सकते हैं जो मैं अपने ट्यूटोरियल्स में सिखाता हूं और मेंटरशिप में उन पर डिटेल से काम किया जाता है। इस तरह आप बेहतर एंट्री पॉइंट पर सेल कर सकते हैं और हमेशा संडे के ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेट नंबर ऑफ पिप्स देकर सेल शॉर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आप मंडे को देख सकते हैं, अगर मंडे हाई बनता है और प्राइस वहां से हरकत करती है तो हम उसमें एंटर नहीं लेते, हम वो हाई देखते हैं डबल टॉप्स वाले। अगर आपको मालूम है कि ट्यूसडे के लंदन ओपन से आगे क्या होगा तो आप फ्राइडे या मंडे के हाई के ऊपर सेल लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं और एक एक्सपोजर कम करके भी अपने 100 पिप्स प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर आप मजीद ये लेसन्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, nenasafiltrader.com।